All right, so we are appearing for starters 226 code chef, and let's hope for the best for this contest. देखते हैं भाई क्या होता है इसमें. Last code chef contest went actually okayish. The last I did was the last I uploaded on YouTube. That was the last time I did on code chef. So yeah, it's gonna be fun. जॉब ओपनिंग्स भी डालते हैं भाई ये यहाँ पे. चलो, we are beginning in 10 seconds. Alrighty. Okay, here we go. Where are the problems, bro? Alrighty. Sub 1 नहीं क्या है, sub A add B. Alright, so we can subtract A and add B, I guess, according to the problem. Cool. Node, bro. So chef is a string of length and the exact contents are irrelevant, only the length matters. Given two parameters A and B, chef does the following repeatedly. While the string is of length of at least A, choose a substring of length A from the string and replace it with a substring of length B. Alright, it is guaranteed that B is lesser than A. Alright, so this process will eventually terminate. Find the final length of the string when this terminates. Cool. So yeah, so we just need to brute force this, right? We've been given an A and B, right? Just copy paste my code over here, the template, and all right, let's begin. So we have been given an A and B and A and B, and it is guaranteed that A is greater than B, right? So while n is greater than equals to A, and we need to count. We need to figure out the final length of that. So I replace a 3 length with a 2 length, so I replace this by the difference, right? And keep doing this. Yes, all right. So enter diff equals A minus B, and I need to subtract this n minus equals to diff, right? So 1 3 2 1 2, so 5 लेंथ को 1 से रिप्लेस कर दिया, फिर 5 लेंथ को 1 से रिप्लेस कर दिया. Yeah, that's it. And just print n, right? Submit this. Okay, this passes. Let's move on to the second problem. Minimum distance, you are given an array of an integer. You can perform the following apply mode to choose two integers, I and j, and set the value of aj to ai. Cool. Find the minimum number of distinct elements that could be left in A after performing at most k operation. Minimum number of distinct elements. So I need to minimize the number of distinct elements. N is greater. N is large. Ai is up to n and k is up to n. And the first line of output the minimum number of distinct elements after at most k. What is k here? The k has been given, right? N and k are given.
and I need to perform those operations. Cool. Let's take a sample. I cannot perform any operation. That's fine. So if I had an 1 2 3 4, let's say 1 2 1 2 3 and 4, and what I can do is I need to choose I and j such that I can set aj equals to ai, right? So what essentially ends up happening is I repeat an element, right? So the count of an element increases by 1, right? That ends up happening. So if I had 2 occurrences of 2 and 3 occurrences of 3, let's say, and if I perform an operation, so do I need to choose all distinct? No, I can just set. So why I can do something like this, right? Like choose these same elements, and so isn't this just the set? Answer is just the set. Yeah. If at least one that exists, then yeah, got it. So my point is, just to explain you guys, my point is, if I have at least one pair that is repeating, like 1 and 1, so I can choose and I can keep choosing this pair and keep replacing this thing with this thing, right? So it never changes. So I can just create a set in this case, and all the unique elements is my answer. So 1 2 3 4. But if I do not have anything, so 1 2 3 4, so I can just change any one particular element with this, and then this will become something like this, and I could keep performing those operations over here, right? So this will now be that. Okay, cool. Let's code this up. So int n and k, cn n and k, and vector of int of a of n for int I 0, I is other, I plus plus cn of a of I, sort नहीं करना मुझे, एक काम कर लेते हैं, मैप ही बना लेते हैं, ये हटाओ, मैप ऑफ इंट एम पी एंड इंट एक्स सी एन एक्स, एक सेट भी बना लेते हैं, सेट ऑफ इंट ऑफ एस और एस डॉट इंसर्ट एक्स and mp of x plus plus. If mp of x is greater than 1, then f equals to true, and I'll have a bool f equals to false over here, and if f is true, then I could just print the length of the set. Otherwise, if it is not true, then I could just print set of size -1 nl, and if it's 1, then yeah, sure. So if this is, or k is not equals to 0, k is equals to 0, my bad. So and if I have, yeah, so 1 1 2's answer is 2, and let's say I had on 1 and 2, so the answer in this case is 1, obviously, right? And if I had on 1 and 1, then the answer is set dot size -1. Yeah, if set dot size -1 is 0, then 1, otherwise s dot size -1. I think that's it. So 2 elements, and there we can choose so कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, you can perform you can perform the following operation at most k times. Yeah, so choose to indices I and j, is that, yeah, set the value of aj to ai, find the minimum number of distinct elements. So do the operations need to be pairwise distinct? That is what I'm worried about, because if I had performed an operation over here, I'll keep performing an operation over there, right? Why would I want to perform here?
According to my approach, this is right. At most k times. अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट निकालना है मुझे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना निकालना है. सॉरी माय बैड एक्चुअली मैच्ड अप. सो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट निकालना है. तो जैसे 1 1 1 2 2 3 है, तो आई कोड की जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है ना उसको एलिमिनेट करते जाओ. तो फ्रिक्वेंसी से सॉर्ट कर लो, एंड जिसकी फ्रिक्वेंसी जैसे 1 है तो 1 को हटा दो किसी से भी. फिर बस हो तो गया यार. देख, फ्रिक्वेंसी से सॉर्ट कर लेते हैं इसको. ये मेरा फालतू में, मुझे एक्चुअली कुछ और करना था एक्चुअली. माय बैड. and yes, so let's skip this and create an array. And for auto p of mp and a dot push back p dot second. Let's sort this up. Sort a dot begin, a dot end, and I need to now calculate the sum such that it is strictly lesser than k, right? So int c nt equals to 0 and sm equals to 0, while sm is less than equals to k, and sm plus equals to a of I, and I equals to 0, and I is less than sz of a, and this thing. And if sm is greater than k, then break, otherwise cnt plus plus, and we just need the count. So we'll print this. Cool. Let's run this. I plus plus भी करना था, my bad. I plus plus तो टी लिया जाएगा. For yeah, so that elements I could exclude, right? So जैसे I है, सॉरी आई है, तो ये जैसे ये कोई एलिमेंट आ रहा था एक बार, कोई आ रहा था 2 बार, कोई आ रहा था 3 बार, तो इतने में हटा सकता हूँ. ये जैसे तो इसका एक ही आएगा, इसका एक ही आएगा. कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं. शिट. देख, कोई एलिमेंट एक बार आ रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, कोई 4 बार आ रहा है, कोई 5 बार आ रहा है. इसको सबसे बड़े वाले से चेंज कर दो ना, तो ये एक ऑपरेशन में 5, तो एक कम हो जाएगा. फिर 3 ऑपरेशन में n minus count is the answer, n minus count is the answer, n minus count is the answer. Submit this. This gives wrong answer for some reason. चलो एक बार और देखते हैं इसको. देख, 1 3 4 5 है ना, 1 3 4 5 है, 1 3 4 5, ठीक है. एक ऑपरेशन में ये हट जाएगा, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है. दूसरे ऑपरेशन में ये हो जाएगा, मतलब इसको लगेंगे 3 ऑपरेशन करने में एग्जैक्टली, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस फ्रिक्वेंसी वाली इसको सॉर्ट कर दिया. काउंट एस एम में जोड़ा ए आई. अगर एस एम बड़ा हो गया के से तो काट दो, वरना नहीं है. तो सही तो लग रहा है यार ये. के टाइम से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ मैं. काम करते हैं. फॉर ऑटो एक्स ए
सी आउट एक्स। यार इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए यार, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्या हुआ ये क्या होगा? तो इसको मैं ग्रेडीली यही करूँगा ना, मैं बड़े वाले को छोटे वाले से हटा दूँगा, छोटे वाले को कम लगेंगे ऑपरेशंस। इसको हटाया, फिर मैं जितने को हटा सकता हूँ उतने को हटा दूँगा, मैं इससे रिप्लेस कर दिया एक ऑपरेशन में। अरे चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? 5-3 चाहे इधर हो, 5 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसको, अगर ऐसा कुछ है। अरे हाँ यार देखना, अगर देख ऐसा कुछ है कि 5 बाद में आ रहा है, 5 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो मैं ए आई सेट द वैल्यू ऑफ ए जे टू ए आई ना, तो आगे वाले की वैल्यू मैं पीछे वाले से कर सकता हूँ ना। आगे वाले की वैल्यू मैं पीछे वाले से सेट कर सकता हूँ। इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो मैं ज़रूरी नहीं है इसको इससे रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि ये नहीं है कि किसी को भी किसी से रिप्लेस कर दो ना। इसकी फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, लेकिन अगर ये आगे है तो मैं पीछे वाले को नहीं कर पाऊँगा ना रिप्लेस, है ना, ये बात है। तो इसमें एसेंशियली क्या कर सकता हूँ मैं, ऑर्डर मैटर करता है फिर तो, है ना। और एन भी बड़ा है, एन बड़ा है कि नहीं? एन बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो एन अगर बड़ा है, जैसे 1 2 2 3 4 4 4, एक फ्रिक्वेंसी नहीं जा पाएगी। इसको एलिमेंट को मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊँगा, इससे चेंज कर पाऊँगा इसको। तो इसको चेंज करने में 2 ऑपरेशन लगेंगे, एंड इसको चेंज करने में लगेगा 1 ऑपरेशन। तो i+1 से कर देते हैं ना यार, i+1 से कर देते हैं ना। सॉर्ट नहीं करते हैं इसको, सॉर्ट नहीं करते हैं। ए आई कहाँ तक हो सकता है? बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। ए आई वहाँ तक हो सकता है ना ब्रो, तू क्या कर रहा है? देख काउंट बना ले, देख मैं बता रहा, काउंट बना ले, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ सी एन टी ऑफ एन, ठीक है, n+1 कर दे। और पता क्या कर, सी एन टी ऑफ x++ कर दे, ठीक है। सी एन टी ऑफ x++ कर दिया मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो पहला एलिमेंट है ना, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो एक काम करना, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा ना पहला एलिमेंट कौन सा है। बिल्कुल सही बात है, सेट बना के ये कर दे क्या? नहीं तो भी पता नहीं चलेगा पहला एलिमेंट कौन सा, ऑर्डर पता चलना चाहिए था, ठीक है। ऑर्डर अगर पता चलना चाहिए तो इससे भी ऑर्डर थोड़ी मत चलता है। 2 को 2 में स्टोर करेगा, 5 को 5 में करेगा। तो मुझे क्या चाहिए बेसिकली, उसका एलिमेंट और उसका काउंट, ठीक है। तो 5 का काउंट है, लेकिन उसका ऑर्डर मेंटेन करना है। देख पहले एलिमेंट के अलावा ना, ये ऑर्डर तो मैटर करता है कि नहीं करता? इसका 3 है और इसका 2 है, तो उसको मैं पहले कर दूंगा ना 2। अरे हाँ, तो 1 शिट i+1 से सॉर्ट कर सकता हूँ मैं, i+1 के बाद वाले से, क्योंकि इससे तो मैं रिप्लेस कर ही सकता हूँ हमेशा जब तक सेम एलिमेंट है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, देख I know it's getting a little confusing, but I'm just trying to prove different ideas and then trying to do that. देखो मैंने इनपुट ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनपुट लिया है। अब इंट i = 0 है,
एंड नहीं 1 कर दो, 1 है, और वाइल ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए आई ऑफ आई माइनस 1 और आई इज लेस देन एन एंड इसको कर दो और आई प्लस प्लस कर दो तब तक। अब आई जो है वो इसके अलग है, ठीक है। तब यहाँ से मुझे एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब बनाओ मैप, तो अब बनाओ मैप, तो अब बनाओ इंट एम पी फॉर या फिर ऐसा कर दो वाइल आई इज़ लेस देन एन एंड एम पी ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस। और अब इसको क्या करो, वेक्टर ऑफ एन टू बी बना लो, एन टू बी बना लो और फॉर ऑटो पी एम पी चले जाओ एंड बी डॉट पुश बैक पी डॉट सेकेंड चले जाओ एंड बी को शॉर्ट मार लो, शॉर्ट ऑल ऑफ बी। बस अब कुछ नहीं करो, इंट एस एम इक्वल टू 0 करो, आई इक्वल टू 0 करो एंड काउंट इक्वल टू 0 करो। देख लूँगा मैं कितने एलिमेंट हटा सकता हूँ, जितने हटा सकता हूँ, टोटल एलिमेंट जितने होंगे, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, एम पी डॉट साइज प्लस 1 होंगे ना, डॉट इक्वल्स टू एम पी डॉट साइज, एम पी बताया कितने एलिमेंट्स है प्लस 1, ये दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वाइल एलिमेंट्स में कितने हटा दिए है ना, तो एलिमेंट्स में कितने, एस एम इज लेस देन इक्वल्स टू के एंड आई इज लेस देन एस जेड ऑफ बी, सो एस एम प्लस इक्वल्स टू बी ऑफ आई। So okay, then break and cnt plus plus and total number of distinct elements माइनस में कितने हटा दिए, काउंट एंड तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को मैं नहीं हटा सकता था, उसको मैंने ये कर दिया। अगले वाले सारों को हटा सकता हूँ मैं, तो मैंने आगे इसके करा और यहाँ से मैंने सबकी फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली और फ्रिक्वेंसी की एरे बना ली, उसको सॉर्ट कर ली और बस कैलकुलेट कर लिया। अरे यार आई प्लस प्लस करना क्यों भूल जाता हूँ मैं। लो भाई, अब ये काम करना चाहिए ब्रो, बिल्कुल। इफ़ आई एम राइट, इफ़ माई आइडिया इज राइट, दैट इज I did this very fast by the way, so I'm not too sure about this. So alright, so it might be queued. Yeah. How can I see if my view all submissions? No, I want to view my submissions only. Why doesn't it show us, bro? No, this fails. This fails for some test case. So मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ना, जैसे यहाँ पे 5 5 5 है, 5 5 5, तो मैं ये कह रहा हूँ इनको कभी नहीं हटाया जा सकता, इन एलिमेंट्स को कभी नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। जैसे 5 5 5 है ना, 5 5 5, तो ये एलिमेंट्स मैं नहीं हटा सकता कभी भी, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स अगर मैं नहीं हटा सकता, क्योंकि देखना इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए जे को ए आई से सेट कर सकता हूँ मैं और जे आई से बड़ा होना चाहिए, मतलब आगे वाले एलिमेंट को पीछे वाले से सेट कर सकता हूँ, मतलब इसको नहीं हटा सकता ना मैं, इसको नहीं हटा सकता। अगर मैं इसको नहीं हटा सकता तो मैं आगे वाले एलिमेंट्स को हटा सकता हूँ, इनको यूज़ करके। क्योंकि अगर जैसे 1 2 बार है, 2 2 है, फिर 1 है, 3 4 ऐसा कुछ है, तो इसके बाद तो इसकी सिर्फ फ्रिक्वेंसी मैटर कर रही है ना। जैसे एक 3 बार आया है, ठीक है, 1 आया है 3 बार, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार, 4 आया है 1 बार। मुझे मिनिमाइज़ करना है, क्या मिनिमाइज़ करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स।
तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मुझे कम से कम करने हैं, तो मैं एलिमेंट्स को हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अब ये 3 बार आ चुका है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे 4 एक बार आए तो 4 को हटा दो। तो 4 को मैं 5 से रिप्लेस कर दिया, मान लो ये यूज़ करके, है ना, इस वाले को यूज़ करके। ऐसे तो 4 हट गया भाई, ये 4 हट गया। अब मैंने 3 की फ्रिक्वेंसी भी एक बार थी, तो मैं फ्रिक्वेंसी बेसिकली मैटर कर रही थी, तो मैंने 3 को भी हटा दिया, 3 भी हट गया। अगर के एटलीस्ट 2 है तो, है ना। तो ये 2 एलिमेंट्स हट गए, तो मैं फ्रिक्वेंसी से वही कर रहा हूँ, मैं 2 शॉर्ट कर लिए, उससे शॉर्ट कर लिया। अब जैसे 2 2 बार आ रहा है, तो अब भाई मैंने इसको रिमूव करने की कोशिश करी, समझ रहे हो। तो ये करा है बेसिकली मैंने। देखो अप्रोच तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। एक बार वापस देख लेते हैं। एन और के है इनपुट में, इसमें लिखा भी नहीं है कि एन और के दिया रहेगा कि, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने क्या कहा, वाई आई इज़ लेस देन एन एंड आई ए आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई माइनस वन, मतलब ये सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम नहीं आएंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं आगे, ठीक है। अब ये मतलब जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से डिफरेंट एलिमेंट चालू हो चुके हैं, पहली वाली ये ख़त्म हो चुकी है चीज़ से 1 1 1। तो इनको तो मैं वैसे भी नहीं हटा पाता ना, 1 1 1 को कैसे ही हटाता मैं इसको। अब मैं चला गया आगे, अब मैं देख रहा हूँ वाइल आई इज लेस देन एन एंड एम पी ऑफ ए आई को मैंने प्लस प्लस इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी मैंने, है ना, और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो इससे मुझे सारी फ्रिक्वेंसी मिल गई, मैंने बना लिया मैप। अब मैंने मैप में डाल दी फ्रिक्वेंसी से मार दी मैंने शॉर्ट। अब मैं एक मेरा सम जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेगा कितने में हटा चुका हूँ, एक काउंट कि मतलब कितने एलिमेंट्स में हटा चुका हूँ। सम ये बताएगा कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। टोटल ये बता रहा है कि हाँ कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो एम पी डॉट साइज और एक और जो पहले था इसके पहले, है ना, ये वाली चीज़, ये एलिमेंट एक और है। तो वाइल एस एम इज लेस देन इक्वल्स टू के, एक बार मैं कोड चेक कर रहा हूँ कि बिकॉज आई थिंक लॉजिक इज राइट। ये लेस देन साइज ऑफ बी, साइज ऑफ बी से ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि बी में, हाँ ठीक है। सम इज लेस देन इक्वल्स टू के, ऑब्वियसली सम इज लेस देन इक्वल्स टू के, सम इज लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। अगर एस एम में मैंने प्लस आई बी आई जोड़ा, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जोड़ी बी आई की, अगर ये के से बड़ा होगा तो छोड़ो, तो अगर ये के से बड़ा नहीं हो तो काउंट बढ़ा दो, मतलब इस एलिमेंट को मैं हटा सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बचेंगे, जितने टोटल एलिमेंट्स थे जितने मैं हटा चुका हूँ उतने टोटल एलिमेंट बचेंगे। तो बचे टोटल माइनस काउंट और आई प्लस प्लस कर दो। तो कोई स्पेसिफिक केस फंस रहा है क्या जिसमें अगर सारे एलिमेंट सेम है, मान लो वो वाला केस फंस सकता है क्या, मान लो डाल के देख लो उसमें 5 और एक 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 एक, इसमें क्या ज़ीरो आना चाहिए, नहीं ज़ीरो नहीं बनी आना चाहिए, सॉरी। अच्छा मैंने वो नहीं पढ़ाया ना, चार्ट है, अरे एक ही डाल ले भाई, 5 ये बताओ कितना होगा इसमें, एक ही है, ठीक है। 2 2 कर दिया मैंने, कर दिया 7। एक है, ठीक है, सही है ये भी। इसको मैं अगर ऐसे बंद कर देता तो क्या होता, थोड़ा सही तो चल रहा है यार ये, क्या हो रहा है यार। यू परफॉर्म द फॉलोइंग पे एट मोस्ट के टाइम्स, के से कम भी कर सकता हूँ, लेकिन के से कम करना कभी ऑप्टिमल है ही नहीं। कहाँ फेल हो सकता है, लोएस्ट वाली फ्रिक्वेंसी को तो हटाएंगे ना यार, पहले कोई एच के सी फंस रहा होगा। हाँ जी बनी आ रहा है, सही तो चल रहा है यार।
सही चल रहा है भाई। बनाना चाहिए इसमें भी। देख वेक्टर इंट लिया एन साइज का, ये एरे ली, i1 से शुरू करा, क्या मैं आगे तक, ये करंट एलिमेंट अब बराबर नहीं है इसलिए वो रन ओवर हो चुका है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आगे कर दिया, सही तो है यार। ये क्या दिक्कत है इसमें, वेक्टर प्रिंट ऑफ बी पी डॉट एम पी डॉट सेकेंड ही पुश बैक कर रहा हूँ मैं, मतलब फ्रिक्वेंसी जा रही है इसकी। बी में शॉर्ट मार दिया मैंने बी को, एस एम सी एन टी टू डॉट एम पी डॉट साइज प्लस वन आई इक्वल टू जीरो अगेन, ये लेस देन है, आई लेस देन साइज ऑफ बी, सम नहीं डाला बी ऑफ आई। अप्रोच ही गलत है क्या? थोड़ा मैं इसको एक बार वापस लिखना चाहूँगा मे बी। वाइल के है एंड ये है, तो एक काम ये करते हैं, एफ के एग्जिस्ट, एफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑफ आई, देन सी एन टी प्लस प्लस एंड के माइनस इक्वल टू बी ऑफ आई, एल्स ब्रेक आई प्लस प्लस। ठीक है, तो होना चाहिए इसका। यार सब तो सही आ रहा है, तो गलत क्या आ रहा है यार? तीसरा पढ़ लेते हैं भाई, माँ बहन हो जाएगी वरना पता नहीं क्या है ये, बहन चौथ। 4 2 ये सही तो है ब्रो। देख, यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट क्रिएट टाइम, चूज टू इंडिसेस आई एन जे सच दैट आई इज लेस देन जे इज लेस देन एंड सेट द वैल्यू ऑफ ए जे टू ए आई। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जब कितने कम से कम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। दैट कुड बी लेफ्ट इन ए आफ्टर परफॉर्मिंग एट मोस्ट के ऑपरेशन, तो एट के से ज़्यादा ऑपरेशन में परफॉर्म कर नहीं सकता। यार क्या दिक्कत हो गई इधर? यार आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दिस अप्रोच यार, प्रिटी श्योर ऑफ दिस अप्रोच। तो ये कहाँ फेल हो सकता है यार, कहाँ फेल हो सकता है भाई ये? लेकिन है if a of I does not equal to a of I minus 1 break,
यार कहाँ दिक्कत है यार इसमें? कौन से केस पे फंस रहा है यार ये? भाई हटाओ, बाद में करेंगे। नेक्स्ट, यूर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, you can perform the following operation as many times as you want, possibly 0. Choose the index a and multiply ai by 2. Find the minimum possible value of max of a minus min of a. This is the use of operation. Multiply ai by 2 कर सकते हैं, और हमें क्या कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंडेक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, और क्या करना है, पॉसिबली 0, और मैक्स ऑफ ए माइनस मिन ऑफ ए का डिफरेंस वो करना है। तो बेसिकली इसको भी भूल जाओ यार, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो मैक्स ऑफ ए माइनस मिन ऑफ ए को क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना। अरे ये क्वेश्चन को मतलब सामने, और मैं ये करना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है जी, ए आई 25 तक हो सकता है जी, ठीक है। 2 3 1 मैक्सिमम 1 ही है। ये बाइनरी सर्च लग सकता है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर, कि अगर इतना मैंने फिक्स कर लिया डिफरेंस, अगर इतना बन सकता है तो इससे ज़्यादा भी बन सकता है, इससे कम में ट्राई करो। तो मुझे लगता है मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। हाँ, इनको भी करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली। तो जैसे 4 2 3 57 10 है ना, तो इन सबको 2 2 से मल्टीप्लाई करो जब तक ये सेकंड मैक्सिमम ना हो जाए। तो मैंने जैसे 20 करा और 20 40 2 बार मल्टीप्लाई करा ना इसको, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3 और 6 और 6 और 12 हो गया। इसको उठाओ भाई, ठीक है, ये कर दे, ये है बेसिकली। और मैं क्या कह रहा हूँ कि कितनी बार भी कर सकता हूँ मैं परफॉर्म, तो मैं कह रहा हूँ मैक्स को मत छेड़ो, इनको मल्टी बढ़ाओ सालों को। तो 8 4 6 20 16 8 12 40। अरे तो इसको क्यों बढ़ा रहे हो, इसको मत बढ़ाओ, रखो, इसको मत बढ़ाओ, इसको क्यों चूतियों की तरह बढ़ा रहे हो तुम, इसको मत बढ़ाओ। पता है, सिर्फ उनको बढ़ाओ, पता है ये आसान है, रुको। एक मिनट रुको यार, सिर्फ उनको बढ़ाओ जिनकी वैल्यू कम है। जैसे 2 को बढ़ा दिया मैंने 4 हो गया, 3 को बढ़ा दिया मैंने 6 हो गया, 4 को मैंने भी नहीं बढ़ाया, ठीक है, या बढ़ा दो, चलो मत बढ़ाओ अभी, ठीक है, 4 है। अब मैंने 6 को बढ़ाया हुआ 12, 4 को बढ़ाया हुआ 8, ये हुआ 8, ठीक है। अब मैंने करा, ये हुआ 24, ये हुआ 16, ये हुआ 16, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 32, इसको मैंने कर दिया 32, इसको मैंने कर दिया 48। मान लो जैसे ये मिन बचा है ना, जैसे अब ये 10 बचा है, तो इसका जो मैक्सिमम था उससे बड़ा है वो मत छेड़ो इससे, ठीक है। तो इससे बड़ा मैंने नहीं छेड़ा, और अगले ऑपरेशन में ये भी 20 बन जाएगा, फिर और अगले ऑपरेशन में ये कितना बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये सबसे छोटा रह जाएगा, ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 40 हो गया। अब और ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, 57 को मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया, 32, तो 42 52 25 आंसर है ना इसका। तो 5 और 25 आ रहा है मेरा। देखो मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई करा तो हुआ 4 4 3 57 10, सबसे छोटा रह गया। हमेशा सबसे छोटे को मल्टीप्लाई करो,
तो 6 4 4 3 10, 4 हुआ तो 8 8 6 57 10। सबसे छोटे को मल्टीप्लाई करो हमेशा, मैं कंजक्चर इस, तो 12 8 8 57 10, सबसे छोटा 8, 16 16 12 57 10, सबसे छोटा 20 10, मतलब 20 57 12 16 16 12 16 16 24 57 20, छोटा 16 32 32 24 57 20, छोटा 20 40 57 24 32 और 32। अरे अभी बचा है ना, अभी बचा है 48 32 32 57 40। 32 57। मैथ ही है ये। 32 5 25 आ रहा है इसका आंसर, तो 80 हुआ। देखना। अरे यार ये तो, ये भाई 24 कैसे आ रहा है, पगला जाऊंगा भाई। साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 14 बन जाएगा। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन के चक्कर में ना मैं चुत गया ये कॉन्टेस्ट मेरा। इसको 2 मिनट बैठो बनाओ यार, ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, इसको 2 मिनट बैठ जाओ और बना दो। गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट k टाइम्स। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट k टाइम्स, तो k टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकता। चूज टू इंडिसेस आई एन जे सच दैट 1 इज लेस देन i इज लेस देन j लेस देन इक्वल्स टू n, सेट द वैल्यू ऑफ एज टू ai। तो अगले वाले की, जो आगे वाले की वैल्यू एज है उसको मैं ai से सेट कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले को वैल्यू को, पहले वाली जो वैल्यू की सेगमेंट है उसको मैंने चेंज कर सकता है, ये मेरा कंजक्चर था, बिल्कुल सही बात है जो कि ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट वुड बी लेफ्ट इन एट मोस्ट की ऑप्शन। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने बचे होंगे? यार मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ, ये सारा केस फंसेगा कहाँ है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ये केस कहाँ फंसेगा, बस यही तो समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हो जाए 2-0। दस करो बहन चो। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही अप्रोच लिखा है मैंने, बिल्कुल ही सही अप्रोच लिखा है भाई, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है यार, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है इस अप्रोच में मुझे।
जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं ये कभी नहीं एक्सचेंज हो सकते ना यार, ये कैसे हो सकते हैं? दो 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 है मेरे पास, तो ये कैसे कभी कोई चेंज ही नहीं हो सकते? तो ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बाकी हमें तो यही प्रिंट, अरे यार क्या मिनिमाइज़ करना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ना मुझे, तो मिनिमाइज़ करना है तो मतलब क्या? तो मिनिमाइज़ करना है मतलब खा जाओ, जितने एलिमेंट्स को खा सकते हो। तो ग्रिडिली शुरू करो कम से। अरे तो सही तो है ना यार भाई, क्यों रुला रहा है मुझे? देखा आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ़ ए आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी आई माइनस वन। अगर ये पुराने वाले के बराबर नहीं है तो ब्रेक कर दो। ये भी सही बात है। मैंने बाकी सारे एलिमेंट जो बचे एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी निकाली, फ्रिक्वेंसी को शॉर्ट मारा, हल्का उसको शॉर्ट मारा। सही तो है भाई यार, कहाँ गलती है ब्रो? चलो इसमें कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा कोई टेस्ट केस मिल जाए ना भाई। 3 4 5 6 7 8 9। छः आना चाहिए आंसर, और क्या? तो मैं इसको मैं हटा पा रहा हूँ। और माइनस टोटल कितने एलिमेंट्स थे? एम पी यही बताएगा ना कितने एलिमेंट्स थे, यही बताएगा मेरे हिसाब से तो एम पी। भाई ऐसा लग रहा है बकचोदी कर रहा हूँ मैं इधर बैठ के, कुछ नहीं है। ये क्या है भाई, व्हाट द फक इज दिस? ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, तो भाई गलती कहाँ है? गलती कहाँ है ब्रो? ये भी सही है, पी डॉट पुशबैक पी डॉट सेकेंड, फ्रिक्वेंसी तो डालनी है ना भाई। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है भाई। क्या गलती है इसमें? पी डॉट सही है। गुस्सा आ रहा है ब्रो, गुस्सा आ रहा भाई। क्या दिक्कत है यार इसमें? 4 2। भाई क्या प्रॉब्लम है यार इसकी यार? अरे यार भाई मत करो यार, रोना आ जाएगा भाई, मत करो प्लीज़ मत करो यार। क्यों नहीं चल रहा है बता दो मुझे यार। ना करे जनाब। कौन सा यार है, कहाँ हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इसका वो लिख ले।
भाई यार बाप साहब, ये क्या हो गया भाई? मैं किस क्वेश्चन में फंसा हुआ? मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है ब्रो। किस क्वेश्चन में फंसा हुआ हूँ भाई? फक, अप्रोच में कोई गलती नहीं है। क्या करूँ मैं बैठ के? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन पे मेरा दिमाग नहीं जा रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में अटका हुआ हूँ भाई मैं। क्या कर रहा हूँ भाई? बताओ क्या करूँ भाई? आप बताओ। छोड़ा नहीं जा रहा क्योंकि कहीं लग रहा है पता नहीं क्या छोड़ी हुई इस गलती है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो पूरा टाइम ही ख़राब कर दिया यार इसमें। देखना कहाँ पे गलती है भाई इसमें यार। या अप्रोच में तो गलती हो ही नहीं सकती ना भाई। अप्रोच में कैसे गलती हो सकती है? और अप्रोच में और क्या होगा बता? तो क्या होगा और अप्रोच में? देख क्या हो सकता है और अप्रोच में। देखो ना कि जो शुरू के एलिमेंट्स हैं इनको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इसमें देखो इसमें लिखा है कि आगे वाली वैल्यूज़ को हटा सकते हैं। आई देखो, आई इज स्ट्रिक्टली लेसर देन जे, ठीक है? तो आगे वाली वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, ठीक है? पीछे वाली वैल्यू को नहीं कर सकते। सेट द वैल्यू ऑफ ए जे टू ए आई, मतलब आगे वाली वैल्यू को पीछे वाले से सेट कर दो। मतलब जो ये मेरी पहला सेगमेंट होगा सेम एलिमेंट्स का, इसको मैं नहीं हटा सकता कभी भी, कुछ भी हो जाए, ठीक है? इसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं ये मैं हटा सकता हूँ जैसे भी चाहूँ, ठीक है? जैसे चाहूँ। और मुझे मिनिमाइज़ करना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो मैं इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल रहा हूँ इनके आगे वाले एलिमेंट्स की कि ये 3 बार आ रहा है, दो, ये 3 भी दो, ये अरे यार दो 2 बार आ रहा है, ये 3 2 बार आ रहा है, ये 4 1 बार आ रहा है, ठीक है? इनकी फ्रिक्वेंसीज को सॉर्ट कर लो। तो मैं पहले 4 को हटाऊँगा एक ऑपरेशन लगा के, अगर मेरे पास है। मैंने एक ऑपरेशन कंज्यूम कर लिया। अब मैं इसके बाद वाले पे जाऊँगा कि इससे बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है सबसे कम। तो ये भाई ये कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा भाई? ये तो बताओ। ये सॉर्ट ही तो करना पड़ेगा इनकी फ्रिक्वेंसीज, तब मैं हटाऊँगा इनको। और क्या होगा बताओ? और क्या होगा भाई? सॉर्ट ही करनी पड़ेगी ना फ्रिक्वेंसी। जब जब मुझे हटाना है, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट दैट कुड बी लेफ्ट इन ए। एटमोस्ट के ऑपरेशन, के से कम ऑपरेशन तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे हटाने हैं एलिमेंट जितने ज़्यादा मैं हटा सकूँ। तो कितने हटा सकता हूँ मैं? इतने हटा सकता हूँ जितना मैं अपनी अप्रोच से लगा रहा हूँ। और क्या है भाई इसमें? और क्या है? देख अप्रोच सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। कोड भी सही लग रहा है। मतलब कोई एच केस ही है जो फंस रहा है। देख कोड सही है, अप्रोच सही है, मतलब एच केस फंस रहा है। एच केस निकाल भाई, कौन सा एच केस बनेगा ऐसा? तो सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो उसमें तो उसकी तो बात ही ख़त्म हो गई यार, कितना बड़ा भी हो। अच्छा ए आई एन तक ही है, ठीक है? उससे क्या लेना देना? एन तक हो चाहे ना हो, क्या लेना देना उससे? हम्म। यार I'm fucking tired of this bro. I'm fucking tired of trying this. भाई आज का हो गया मेरा तो यार, बिल्कुल मन नहीं है ये कॉन्टेस्ट देने का मेरा। ठीक है, 9 ऑपरेशन में ही एक एलिमेंट बन जाना चाहिए। 8 में 2 बचने चाहिए। सही तो है भाई, सही तो है ना यार। क्या दिक्कत है यार इसमें? कौन सा एज केस फंस सकता है इसमें? कौन सा एज, ये बताओ कौन सा एज केस फंसेगा इसमें? ये सही है के जीरो तो नहीं हो रहा। अगर के बड़ा है बी आई से तो भाई काउंट बड़ा होगी, ये एलिमेंट हटा सकता हूँ मैं। के में से माइनस कर दो इतनी चीज़, आगे बढ़ जाओ वरना ब्रेक कर दो। ओ भाई, ओ भाई,
ये क्या हो रहा है भाई, कि चूतिया ने बनाई है प्रॉब्लम। भाई साहब भाई क्यों अटकाऊँ मैं इस चूती सी प्रॉब्लम में यार, क्यों अटकाऊँ भाई। भाई मन ने ना आ रहा कुछ समझ। देखो फेल तो हो रहा है और सेकंड पे ही फेल हो रहा है, मतलब ये चल ही नहीं रहा है। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक केस होगा जो इसमें फट सकता है। मेरा अब सही बताऊँ दिमाग नहीं चल रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा यार इस प्रॉब्लम को, इसको नहीं कर पाऊँगा मैं अभी तो फ़िलहाल, जब तक ये नहीं हो जाएगी। इसको बैठ के करूँगा, ये नहीं हो पाएगी यार अभी मेरे से, मेरा आई डोंट हैव एनी मोर पेशेंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इसमें क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ ए माइनस मिन ऑफ ए करना है, और मैं कितनी बार भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए आई में 2 का, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मेरे पास 1 4 7 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, या मान ले 1 नहीं है 3 है, तो मैंने इसको 6 4 7 बनाया और 6 8 7 बनाया। ठीक है, तो अभी डिफरेंस है 2 का। मान लें मैंने बना दिया इसको 12 8 7, फिर मैंने बना दिया 12 14 16, तो ये 4 का डिफरेंस बन गया। और अब इसको 24 बनाया, 16 बनाया, 14 बनाया, 24 बनाया, 32 बनाया, 28 बनाया, 8 हो गया। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 2 था। देख जो मिनिमम डिफरेंस था ना, ये 2 के टर्म्स में बड़ा ही है। देख 2 2 से बढ़ ही रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है ना, जैसे तू ए आई है, ठीक है, ए आई प्लस 1 है, ए आई प्लस 2 है, ठीक है। तो मान ले ये मिनिमम माइनस मैक्सिमम का जो डिफरेंस है, और अगर तूने इनको 2 ए आई हो गया और 2 ए आई प्लस 2 हो गया, मान ले 2 ए आई प्लस, तो जब तू उसको सब्सट्रैक्ट करेगा तो 2 इंटू जो ओरिजिनल डिफरेंस आएगा, ऐसी सिमिलरली ये 4, तो इसका ट्वाइस आएगा डिफरेंस, समझ गया। तो डिफरेंस बढ़ेगा ही और कम नहीं होगा। तो ना मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि मेरे एलिमेंट सिर्फ 1 ही 9 तक ही हैं, वो चूतिया सी प्रॉब्लम मत लाना मेरे सामने वापस। हाँ, तो एलिमेंट्स मेरे 1 ही 5 तक ही हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ऐसा कर दो कि सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो जब तक वो पहुँच ना जाए एज क्लोज एज उसके, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो एक्सीड कर सकते हैं, एक्सीड भी कर सकते हैं। एक बार मैं एक्सीड भी करा दूंगा उनको, मतलब ऑब्वियसली जिनका डिफरेंस देख, जिनका जैसे 3 है ना, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तब ये जबकि ये पास आएगा। अगर 6 के मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूर जा रहा है तो मैं नहीं करूँगा मल्टीप्लाई। तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम को फिक्स करो, मैक्सिमम को नहीं करता हूँ, बाकी सारों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हमेशा काम करेगा। प्रूफ करके देख लेते हैं। इसका डिफरेंस 24 आ रहा है, मेरा 25 आ रहा था, एक बार और प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। 4 2 3 57 10 57 10। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम को फिक्स रख दिया, 2 को मैंने 4 बना दिया, 57 10, 3 को 6 बना दिया, बाकी सब एज इट इज़ है, 57 है 10 है, 8 बना दिया, 6 है, 57 है 10 है, और बेसिकली 12 बना दिया, 8 बना दिया, 8 बना दिया, 57 है 10 है, एंड 16 बना दिया, 16 बना दिया, 12 बना दिया, 57 बना दिया, 10 20 57 12 16 16 24 57
20, 16, 16, ठीक है, 32, 32, 24, 57, 20, 48, 32, 32, 48, 57, 40 कर दो इसका, यही होता है ना, हाँ 40, हाँ ठीक। अब 64, क्योंकि ये डिफरेंस कम है, 64, 48, 57 एंड 40, 58, 68, 58 एंड आगे। तो बस इतना ही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मल्टीप्लाई करो, जब तक मल्टीप्लाई करते जाओ, बस इतना ही है, आई गेस इतना ही है। अरे आई एम ट्राइंग टू कीप दिस फैमिली फ्रेंडली, बट आई गेस इट वुडंट बी फैमिली फ्रेंडली टुडे, ठीक है। ऑल राइटी, लेट्स लिखते हैं भाई इसको, इंट ए ऑफ एन, ठीक है भाई, है ना, 0 आई प्लस प्लस सी एन, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, लॉग बेस एन इंटू लॉग बेस 2 एन है बेसिकली, तो इंट एम एक्स इक्वल्स टू एम एक्स एलिमेंट एंड ऑल ऑफ ए। अब मैं जा रहा हूँ एक एलिमेंट आई प्लस प्लस, ठीक, वाइल 2 इंटू ए आई माइनस एम एक्स, मतलब एब्सोल्यूट ऑब्वियसली, एब्सोल्यूट this is lesser than a of I absolute minus mx. See out if this works, then I'm gonna be that कि नहीं, obviously नहीं काम कर रहा है। हाँ, ये तो हम प्रीटी श्योर कि एम एक्स फिक्स रहेगा, ठीक है। क्या आ रहा था, 10424 ही आ रहा था ना। एक काम करते हैं,
चलो भाई आज का लग रहा है हो गया यार. I'm out of energy, I'm out of ideas. That's it for my side today I guess. अब नहीं कर पाऊँगा, I'm sorry. Worst contest of my life. Can't believe कि आज रिकॉर्ड कर रहा था, आज ही सबसे बेकार कॉन्टेस्ट किया है मेरा. कोई बात नहीं, it happens. But I'm out of ideas. I don't want to try anymore, you know. मन नहीं है यार, अब नहीं सोच पाऊँगा. I mean, do I genuinely think that this is like I think this approach is right. I mean, I certainly am in the right direction for sure. I'm pretty sure of that. फकड़ भाई, आज का हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे. और भाई दिस इज़ द वर्स्ट कॉन्टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई कैन प्राउडली से. वन ऑफ द वर्स्ट इफ़ नॉट द वर्स्ट, बट या कोई बात नहीं, होता है.
that's all I can say, and yeah, see you in the next one.